Hello, this is Faisal here. Welcome you all to Study from Home. Let's start with our class 5 AVS with chapter number 6 Every Drop Counts. In our previous video, you have learned about some customs and rituals regarding water. Let's move to the next point, find out. Here, some questions have been asked to you. Let's study of it. Is there a lake, well or step well near your house or school? क्या आपके हाउस और स्कूल के नज़दीक लेक, वेल या फिर स्टेप वेल पाया जाता है या फिर देखा जाता है? Visit it and find out more about it. But generally, these questions answer may be vary और डिफरेंट फ्रॉम स्टूडेंट्स टू स्टूडेंट्स. मीन्स कहीं कहीं पे किसी स्टूडेंट्स के घर के पास या फिर जो वो विलेज में अगर रहते हैं देन वहाँ पे ज़्यादा चांसेस है दैट कि वहाँ पे तालाब या फिर लेक और वेल स्टेप वेल कुछ भी हो सकता है, जनरली देखने को भी मिलता है. बट सो स्टूडेंट्स हु आर लिविंग इन सिटी एरिया, राइट, possibility have or probably don't find such lake, well or step well. So जिनका आंसर yes है then they have to visit it and find out more about it by asking following questions. How old is it? Who got it built? यानी अगर यस वो लेक, वेल, स्टेप वेल या फिर पॉन्ड है देन वो कितना पुराना है और उसे किसने बनाया है. देन लेट मी गिव यू आंसर रिगार्डिंग इट, राइट, अकॉर्डिंग टू माई ऑब्जर्वेशन नियर बाय माई विलेज दैट यस it is very old, approximately 50 to 100 years old. Who got it built? Means a person or a head persons who lived at that time had got it built. What kinds of buildings are around it? किस तरह की बिल्डिंग उसके चारों ओर पाई जाती है. Then some old buildings as well as some new buildings. Apart from it, some religious buildings like mosque and temples also found around it. Is the water clean? Is it clean regularly? No, the water is not clean and it is not clean regularly. Who all use the water? Most probably all the village people use the water, but generally the washermen come to such place and wash the clothes, as well as some cattle herders often come along with their cattle and cattle shower in such pond. Is there any festival celebrated at this place? Generally, no festival celebrated at this place, but may possible in some other areas some festivals has been celebrated at such place. Like I can give you the example of Kakadiya Lake as well as Saputara, where every day or at Kakadiya Lake each year some celebration has been taken place. Take place. And even at some lake, some boating festival or boating competition has been take place. Is there any water today or is it dry? Yes, there is some water today. It is not completely dry. When
the rain would be plenty, then it won't dry. But due to the scarcity of rain for this year, then it is partially dried. So now move to the next topic. Think over it. In 1986, there was no rain in Jodhpur and the surroundings areas, यानी 1986 में जोधपुर में बारिश नहीं हुई थी और उसके आसपास के किसी भी एरिया में भी बारिश नहीं हुई थी. पीपल रिमेंबर द ओल्ड एंड फॉरगॉटन स्टेप वेल, यानी लोग भूल गए, उन लोगों को याद आ गया एक वो स्टेप वेल, यानी जिसको बाउली भी कहा जाता है, कि जिसमें बरसों पहले प्लेंटी ऑफ वाटर, इनफ वाटर पाया जाता था. They cleaned the step well and more than 200 trucks of garbage was taken out of it. यानी फिर उन्होंने पानी की किल्लत आई, यानी स्कार्सिटी ऑफ वाटर, बारिश नहीं हुई थी, जिसकी वजह से उनको जो पुराना स्टेप वेल है उसे क्या करना पड़ा, साफ़ करना पड़ा, क्लीन करना पड़ा. और जब उन्होंने उसको क्लीन किया तब एक दो नहीं बल्कि पूरे 200 ट्रक्स भर के गार्बेजेस वो स्टेप वेल्स में से निकाले गए. पीपल ऑफ द एरिया कलेक्टेड मनी. सो लोगों ने आसपास के इलाके में से, एरियाज में से लोगों के पास से कंट्रीब्यूशन लिया, पैसे लिए. द थर्स्टी टाउन गॉट वाटर फ्रॉम द स्टेप वेल. फिर उनको वो स्टेप वेल में से पानी पीने के लिए मिला. आफ्टर अ फ्यू ईयर्स इट रेन वेल एंड अगेन द स्टेप वेल वॉज फॉरगॉटन. फिर बाद में कुछ सालों बाद फिर से इनफ रेन, यानी अच्छी बारिश हुई, जिसकी वजह से फिर से लोग स्टेप वेल को क्या हो गए, भूल गए. मीन्स जैसे कि एक यहाँ पे एक सेल्फिश नेचर ह्यूमन का बताया गया है, दैट कि जब हमारे पास या फिर हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तब हमें उसकी कदर महसूस होती है, राइट. सो जब तक यानी पानी मिलता रहता है इजीली, आसानी से, तब तक तो हमें उसकी कोई कदर रहती नहीं है. लेकिन जब कभी पानी की किल्लत होती है, मीन्स नहीं मिलता है, देन वी रियलाइज हाउ इम्पोर्टेंट वाटर इज़. Now let's move to the next. Discuss. There are two old wells in the area where Punita live. पुनीता जहाँ पे रहती है वहाँ पे दो पुराने wells थे और है. Her grandmother says that about 15-20 years ago there was water in these wells. यानी 15-20 साल पहले इस वेल में पानी हुआ करता था. द वेल्स कुड हैव ड्राइड अप बिकॉज, लेकिन अब ये वेल जो है वो क्या हो गए हैं, ड्राइड हो गए, बिल्कुल सूख गए हैं. लेकिन उसकी वजह क्या है, दैट वाटर इज़ बीइंग पम्प्ड अप फ्रॉम अंडर द ग्राउंड विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर्स. पानी को इलेक्ट्रिक मोटर्स के यूज़ करके पूरा का पूरा पानी ग्राउंड में से खींच लिया गया है. द लेक्स in which rainwater used to collect are no longer then. जहाँ पहले लेक में से पानी वेल में आता था, अब वो लेक भी हर जगह पे या फिर ज़्यादातर देखने को मिलते ही नहीं हैं. द सॉइल अराउंड ट्रीज एंड पार्क्स इज़ नाउ कवर विथ सीमेंट. जहाँ जहाँ पे भी आप देखो देन कहीं पे पार्क है या फिर ट्रीज़ है तो उसके सराउंडिंग एरिया जो पहले वहाँ पे क्या होती थी, सॉइल होती थी, यानी बारिश का पानी अगर वहाँ पे गिरता देन वो जो सॉइल होती उसको श्रिंक कर लेती, शोक कर लेती, जिसकी वजह से वो पानी बाद में एक नेचुरल प्रोसेस के तहत, अंडरग्राउंड वाटर के तहत वेल में जाता. बट अब क्या हो गया है, उसके आसपास एक पक्का
सीमेंट से यानी क्या कर दिया गया है, एरिया कवर कर दिया है, जिससे अब पानी ड्रेन होके चला जाता है। इज़ देयर सम अदर रीज़न फॉर दिस? इसके अलावा भी कोई और रीज़न हो सकते हैं? देन डेफिनेटली वी कैन से दैट कि हाँ, जो वेल पहले थे यानी उसकी एक तरीके से प्रॉपर केयर नहीं की गई, जिसकी वजह से ये हुआ है दैट कि वो वेल्स क्या हो गए हैं, ख़राब हो गए हैं, मीन्स उसमें पानी मिलता नहीं है। सो that's all for today. Inshallah, in our next, we will see the story today. Till then, take care of yourself and your family. Thank you and have a nice day.